آج سے کئی سو سال پہلے ملک مدائن میں ایک بادشاہ نوشیروان حکومت کرتا تھا جو بڑا بہادر، شجاع اور عادل تھا۔ اس کے عہد میں ہر شخص خوش تھا۔ ظلم و ستم کا اس شہر میں کہیں نام و نشان نہ تھا۔ شیر و بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، اس لیے وہ نوشیروان عادل کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ نوشیروان کا وزیر خاص برز جمر عقل و دانش میں لافانی تھا، جانوروں کی زبانیں جانتا تھا اور خواب کی تعبیر بتانے میں اپنی مثال نہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کوئی بھی فیصلہ اس کے مشورے کے بغیر نہ کرتا تھا۔ ایک دن نوشیروان نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک کوا آیا اور اس کے سر سے تاج اڑا کر لے گیا۔ پھر مغرب سے ایک باز آیا، اس نے کوے کو مار کر وہ تاج پھر بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ اس خواب کو دیکھ کر بادشاہ جاگ اٹھا اور صبح ہوتے ہی اپنے وزیر برز جمر کو بلایا اور شب کا خواب کہہ سنایا۔ برز جمر نے کچھ سر کھجایا اور پھر یوں تعبیر خواب بتایا۔ ایک مشرق کی طرف ایک شہر ہے، نام جس کا خیبر ہے۔ وہاں ایک بادشاہ ہشام پیدا ہوگا جو آ کر بادشاہ کا تخت و تاج چھین لے گا، اور دوسری جانب مغرب کی طرف ایک شہر مکہ ہے۔ وہاں اس ماہ چاند کی 14ویں کو ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ ہشام کو مارے گا اور آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس دلائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ پھولا نہ سمایا، بزر رجمر کو انعام و خلعت عنایت فرمایا اور مکہ کی طرف روانہ کیا کہ 14ویں کی رات کو جو لڑکا پیدا ہو تو اس کی ہمارے بیٹوں کی طرح پرورش کرو اور وہ ہمارے لڑکے کی طرح مشہور ہو۔ بزر رجمر تحفے تحائف لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے باہر قیام کیا اور حکم دیا کہ 14ویں کی رات کو جو فرزند پیدا ہو ہمارے پاس لے آؤ کہ اس کا نام بھی رکھیں گے اور ماہانہ بھی جاری کریں گے۔ چند دن انتظار کے بعد آخر 14 تاریخ آئی اور بزرگ جمر اپنے علوم و نجوم کا کھاتا کھول کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سردار اپنی گود میں اپنے فرزند کو اٹھا کر لایا۔ بزرگ جمر نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور جنم کنڈلی کو جو بنایا تو پتا چلا یہ وہی لڑکا ہے جو بادشاہ کا تخت و تاج واپس کرے گا، ہفتے اقلیم سے خراج لے گا، تمام جہاں میں اپنا نام پیدا کرے گا، ملک ملک کے پہلوانوں کو زیر کرے گا، بے شمار ملک فتح کرے گا۔ بز رجم نے اس لڑکے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور امیر نام رکھا، بچے کے باپ کو مبارکباد دی اور بچے کی سلامتی کے لیے خدا کے حضور دعا کی اور ایک صندوق اشرفیوں سے بھرا ہوا بچے کے باپ کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جس کا نام بشیر تھا ایک بچے کو لایا۔ بز رجم نے اسے بھی گود میں اٹھایا اور اس کی جنم کنڈلی کو جو بنایا تو پتا چلا کہ ہر میدان میں یہ امیر کا ساتھ دے گا، تیر اندازی کے فن میں بادشاہ ہوگا۔ سو نام اس کا بز رجمر نے مقبل وفادار رکھا اور لڑکے کے باپ کو 2000 اشرفیوں کا ایک تھیلا دیا اور وہ بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا واپس لوٹا۔ راستے میں اس کی ملاقات عمیر چالاک سے ہوئی۔ پوچھا کہ کہاں خوش خوش جاتا ہے اور یہ ہاتھ میں کیا ہے اور کہاں سے پایا ہے؟ تیرے پاس یہ مانو اسباب کہاں سے آیا؟ بشیر نے کہا سب خدا کی شان ہے، یہ تھیلا اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر سارا قصہ سنایا۔ عمیر چالاک کے منہ میں پانی بھر آیا، فوراً بھاگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے کہا تم مجھ سے ایسی بے حیائی کی باتیں کیوں پوچھتا ہے؟ غرض یہ کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ عمیر چالاک نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور وہ مارے درد کے چلا اٹھی اور لڑکا جن کے مر گئی۔ عمیر چالاک نے بیوی کی قطعی پرواہ نہیں کی اور بچے کو اٹھا کر سیدھا بزر جمر کے پاس لے آیا۔ بزر جمر نے بچے کو اٹھایا اور پھر وہی عمل دہرایا اور چلا اٹھا کہ یہ بچہ عیاران روئے زمین کا بادشاہ ہوگا۔ چستی وہ چالاک جال میں پھنسائے گا اور خوب مزے اڑائے گا۔ امیر کا راز داں ہوگا، امیر کو فقط اپنا سچا آقا کہے گا، ہر حکم بجا لائے گا، امیر کو بہت سے خطرات سے بچائے گا۔ یہ کہہ کر بچے کو پیار کیا اور عمرو عیار نام رکھا اور اس کے باپ کو 1000 اشرفیوں کا تھیلا دیا۔ اتنے میں بچے نے رونا شروع کر دیا اور کسی طرح چپ نہ ہوا۔ اس کو چپ کرانے کے لیے بزر جمر نے اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دی۔ بزر جمر کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، امرو نے اس کو منہ میں اتار لیا اور چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بزر جمر کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو دیکھا کہ انگوٹھی غائب ہے۔ ہر جگہ تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈ ساجب نہ ملی تو خاموش ہو گیا، کسی سے نہ کہا تاکہ لوگ شرمندہ نہ ہو۔
खैर दूध मंगवाया, खुद पिया व एक कतरा उम्रो अय्यार के मुंह में डालने के लिए जो उसका मुंह खोला तो मुंह के अंदर अंगूठी को पाया। गर्ज ये कि बज़ रजम ने तीनों बच्चों को एक दाया के सुपुर्द कर दिया जो हर रोज बच्चों की देखभाल करती। वो दाया जिसका नाम आदिया बानो था, वो तीनों लड़कों को दूध पिलाती थी। क्या देखती थी कि अमरो रोज बरोज मोटा होता जा रहा है। सब हैरान थे कि सबको एक जैसी खुराक दी जा रही है, फिर अमरो के मोटा होने का सबब क्या है। इधर अमरो रोज रात को चुपके से उठता था और घुटनों के बल चलकर इधर उधर फिरता। जो चीज मिलती खा लेता और जो चीज अच्छी लगती उठा लाता और आदिया बानो के पानदान में छुपा देता। उधर सुबह होती तो धूम मचती कि फला चीज गायब है। जब तलाश की जाती तो आदिया बानो के पानदान में से मिलती और वो बेचारी शर्मिंदा होती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अमीर बज्र जमर का कीमती मोती चोरी हो गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला कहीं भी। मजबूर होकर गामों और लौंडियों को बांधा और दाया को भी धमकाया डराया कि जहाँ भी हो फौरन मोती हाजिर कर दो, वरना बहुत सजा दी जाएगी, हरगिज माफी न होगी। सब रोते थे कि हमने नहीं लिया। गरज बुजुर्ग जमर अमरू के पास आए तो देखा कि अमरू का गाल सूजा हुआ है। फौरन दाई को बुलाया और अमरू के गाल सूजने का सबब पूछा। इस बेचारी ने कहा कि रात को अच्छा भला सोया था, इस वक्त खुदा जाने इसको क्या हो। अफसर जमर ने मालूम करने की खातिर गाल पर हाथ रखकर जरा सा दबाया तो अमरू के मुंह से मोती निकल पड़ा। बुजुर्ग जमर हैरान हुए कि खुदा खैर करे, ये लड़का तो बड़ा चोर होगा। जिन जिन को बांधा था खोल दिया गया और दाई से माजरत की। गर्ज ये कि इसी तरह 5 साल गुजर गए और फिर तीनों बच्चों को मकतब में बिठाया गया और एक मशहूर उस्ताद को अतालक मुकर्रर किया। अव्वल रोज उस्ताद ने तीनों को बिस्मिल्लाह पढ़वाई। दूसरों दिन जो सुनी तो सबने सुनाई, मगर अमरू ने तकरार शुरू कर दी। उस्ताद ने कहा अलिफ तो अमरू ने कहा बरहक। उस्ताद ने कहा मैं तुझसे क्या कहता हूँ और तू क्या कहता है। अमरू ने कहा आपने कहा अलिफ और मैंने कहा बरहक, यानी अलिफ वाहिद है और जात अल्लाह भी वाहिद है और बरहक है। तब उस्ताद ने कहा ए लड़के, तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है। गरज ये कि इसी तरह अलिफ पर कई दिन बहस होती रही। गरज उस्ताद ने अलिफ के बाद कहा बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, जीम के अंदर 1 नुक्ता। अमरू ने जो देखा तो कायदा बंद किया और अमीर और मुक़बिल का हाथ पकड़कर कहने लगा चलो हम घर चले, हम इस बदतमीज उस्ताद से सबक नहीं पढ़ेंगे। हम इससे कायदा पढ़ने आते हैं ना कि हिसाब किताब करने, कि किसी के पास 1, किसी के पास 2 और किसी के दरमियान 1 बताता है। गरज ये कि अमरू इन्हीं शरारतों से किसी को भी पढ़ने नहीं देता। उस्ताद ने बुजुर्ग जमर से शिकायत की तो उन्होंने अमरू को अमीर से अलहदा करने का फैसला किया, मगर अमीर रो दिया और कहा कि अगर अमरू मुझसे जुदा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। सो बुजुर्ग जमर ने अपना फैसला बदल दिया। एक दिन जब लड़के पढ़ने के बाद आए और दोपहर के वक्त सो गए तो अमरू ने उस्ताद की पगड़ी चुरा ली और हलवाई के पास ले गया और 5 रुपए की बेचकर मिठाई ले आया। मिठाई और बड़े लड्डू में जमाल गोटा मिलाकर रख दी और सो गया। उस्ताद उठा तो देखा कि मिठाई का टोकरा अधरा है। उस्ताद ने जगाकर पूछा था कि ये मिठाई कैसी है। अमरू ने कहा बाबा जान ने नजर मानी थी, ये मिठाई वो लाए थे। वो काफी देर बैठे रहे, आप सोए रहे। जब आप ना जागे तो उनको जरूरी काम था तो मुझको उठाकर कह गए कि इस पर फातिहा दिलवाकर तकसीम कर देना। उस्ताद ने फातिहा पढ़कर ऊपर से बड़े बड़े पेड़े उठाकर जिनमें जमाल गोटा मिला हुआ था वो खा लिए और बाकी मिठाई अमरो, अमीर और मुक़बिल के आगे रख दी और तमाम लड़कों को शरीक करके खाई। 2-4 मिनट गुजरे तो उस्ताद से पेट में गड़बड़ हुई तो कुछ डरा और कहा अमरो तुमने मुझे क्या खिलाया। अमरो ने कहा मुझे बदनाम ना कीजिए, सबने यही खाई है। आपको थोड़ी भूख थी और खाई बहुत, इस गरानी और बदहजमी से पेट छूट गया। गर्ज शाम तक उस्ताद का बुरा हाल था। लड़कों को छुट्टी दी और शाम को कपड़े बदले और पगड़ी देखी तो कहीं ना पाई। लड़के जा चुके थे। नाचार दुपट्टा सर को लपेटकर हाथ में असा के कर मस्जिद में से घर की तरफ चले। जब हलवाई की दुकान के आगे से गुजरे तो हलवाई ने बुलाया और कहा कि आप पर क्या बुरा वक्त आया कि पगड़ी के एवज मिठाई मंगवाई। उस्ताद बहुत शर्मिंदा हुए, पगड़ी को 5 रुपए के एवज वापस लिया और घर की तरफ चल दिए। दूसरे दिन मस्जिद में आए तो अमरो को झाड़ू देते हुए देखा। खामोश हो गए और सोचा शायद अपने किए पर नादिन है। थोड़ी देर बाद बाकी बच्चे भी आ गए
सबको पढ़ाने के बाद उस्ताद ने नहाने के लिए हमाम जाने का फैसला किया और खिजाब तैयार करके अमरो को दिया और कहा कि तुम इस खिजाब को ले जाकर वहाँ हमाम में रखो, मैं अभी आता हूँ। अमरो खिजाब लेकर चला। रास्ते में शरारत सूझी और खिजाब ने 1 तोला हड़ताल मिला दी। उस्ताद ने खिजाब दाढ़ी पर मिलाया और कुछ देर बाद पानी जो डाला तो हाथ में सारे बाल आ गए। बहुत शर्मिंदा हुआ और मुंह छुपाकर सीधा बजुर्जम के पास आया और कहा, देखो आज अमरो ने मेरा क्या हश्र कर दिया, मेरे चेहरे से दाढ़ी साफ हो गई, अमरो ने मुझे हिजड़ा बना दिया। बजुर्जम ने माजरत की। इतने में अमरो आ गया। बजुर्जम ने बुलवाकर खूब मारा। अब तो अमरो उस्ताद का दुश्मन हो गया और दिल ही दिल में उस्ताद के बारे में तरकीबें सोचने लगा। दूसरे दिन मकतब जाते वक्त एक दुकान पर रुका और दुकानदार से कहा कि तुम्हारी घर में तुम्हारी अम्मा ने सुइयों का डब्बा मंगवाया है। दुकानदार जानता था, चुनाचे सुइयों का डब्बा उमर को दे दिया। इस दिन उमर जरा जल्दी मकतब पहुंच गया। सुइयां उस्ताद की कुर्सी पर बिछा दी और खुद वापस आ गया और फिर सब लड़कों के साथ मकतब गया। उस्ताद आया और बेध्यानी में कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही बेचारे के बदन में सुइयां गुड़ गईं और खून बहने लगा और मछली की तरह तड़पने लगा। तब लड़के बड़े घबराए, करीब आए, सुइयां निकाली। उस्ताद दर्द से आहें भरता था। उमरू करीब खड़ा था और कहता जाता था कि अगर हमें मालूम हो जाए कि ये हरकत किसकी है तो हम इसकी भी ऐसी हालत करेंगे। उस्ताद ने घर जाने की सोची तो उमरू फौरन सवारी ले आया। उस्ताद को उसमें बिठाया और साथ चल पड़ा। जब सवारी उस दुकानदार की दुकान के आगे से गुजरी तो उसकी नज़र उमरू की तरफ पड़ी है तो वो बेख्तियार दुकान से दौड़ा और कहने लगा कि ए लड़के, तू बड़ा शरीर है, भला मेरी माँ ने कब सुइयां मंगाई थी। उस्ताद ने सुइयों का नाम सुना तो दुकानदार को करीब बुलाया तो दुकानदार ने सब हाल कह सुनाया। उमरू ने सोचा कि अब खैर नहीं और आंख बचाकर भागा और मकतब आकर अमीर और मुकबिल से कहा, अब इस शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं। अमीर ने वजह पूछी तो कहा, बात करने का वक्त नहीं है, बस अब तुम सबसे जुदा होता हूँ। अमीर ने कहा, ए उमरू, तेरी जुदाई मुझसे कब सही जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अमीर और मुकबिल भी अमरू के साथ हो गए और शहर के बाहर एक पहाड़ के दामन में जा छुपे। रात हुई तो वहीं सोए। सुबह उठकर चश्मा के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ी और अमरू से कहा कि ये दिन तुमने दिखाया कि भूखों मरे जाते हैं। अमरू ने कहा, फिक्र ना करो, अभी जाऊंगा और कुछ ना कुछ तो लेकर आऊंगा। अमरू गया, उधर उधर तलाश किया मगर कुछ न मिला। एक दरख्त पर खुरमे लगे हुए थे, उनको तोड़ा और वापस आया। सबने मिलकर वो खुरमे खाए। इधर ये लड़के भी अपने किए पर नादिम थे। तीसरे दिन बुजुर्ग जम्मर तलाश करते करते उस पहाड़ तक पहुंच गया। अमरू ने बुजुर्ग जम्मर को आते देखा तो कहा, अब मेरा यहाँ से भागना ही मुनासिब है, तुम अपनी फिक्र करो। ये कहकर वो एक तरफ भागा। जब अमीर ने बुजुर्ग जम्मर को देखा तो फौरन करीब आया। बुजुर्ग जम्मर ने सीने से लगाया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी खता नहीं है, सारी खता इस शैतानज़ादे की है। बुजुर्ग जम्मर अमीर और मुकबिल को लेकर वापस आए और ताकीद की, अमरू यहाँ हरगिज ना आए। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। अमीर को अमरू की याद बहुत आती थी मगर खामोश हो जाता था। आखिर 7 दिन बाद अमीर अमरू के गम में बीमार हो गया और खाना पीना छोड़ दिया। मजबूर होकर बुजुर्ग जम्मर ने तलाश के अमरू को भी वापस अमीर के पास भिजवाया। अमीर बहुत खुश था। गर्ज ये कि इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन ये तीनों बाग में जा पहुंचे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अमीर को बड़ा सुकून मिला और मुकबिल की गोद में सर रखकर सो गया। अमरू इधर उधर फिरने लगा। एक दरख्त को देखा कि उसमें खुरमे लगे हुए थे, उस पर चढ़ गया, खूब खुरमे तोड़े और नीचे आकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद अमीर जागा और अमरू से पूछा कि ये खुरमे कहाँ से लाए हो। कहा, दरख्त पर चढ़कर तोड़ लाया हूँ। और कहा, दरख्त पर चढ़ना हम जैसे दुबले पतले का काम है और तुम तो अरब के पहलवान हो, ताकत में तुम्हारा जवाब नहीं। तुम जैसे पहलवान दरख्त पर चढ़ते नहीं, दरख्त उखाड़ कर खुरमे खाते हो। उमर का ताना अमीर को बुरा लगा और गुस्से में आकर 2-3 झटके दिए, दरख्त को उखाड़ डाला और उसके खुरमे खाने शुरू किए। अमीर की इतनी ताकत देखकर अमरू हैरान रह गया, लेकिन अमरू को जलाने के लिए कहते, ऐसे कीड़े खाए हुए दरख्त को तो मुझ जैसा आदमी भी उखाड़ कर फेंक सकता है। हम तो जब माने जब कोई दूसरा दरख्त उखाड़ कर दिखाओ। अमीर ने गुस्से में आकर एक और दरख्त को उखाड़ दिया। अमरू ने कहा, ये दरख्त तो बिन पानी के कमजोर हो रहा था, अगर कोई और दरख्त उखाड़ते तो हम जानते। अमीर ने एक और दरख्त उखाड़ा और जोश में चौथे की तरफ बढ़ा तो अमरू ने हंसकर कहा, ए अरबजादे, दीवाना हुआ है, न जाने किस गरीब का बाग उजाड़ डाला। अमीर ने कहा, मैंने तेरे कहने पर ये दरख्त उखाड़े हैं, तेरी वजह से मुझसे गलती सरजद हुई है। अमरू मुस्कुराया और सीधा बाग के मालिक के पास गया और उसे बताया कि एक हवा का बगोला आया था और जिसकी वजह से तेरे दरख्त जड़ से उखड़ गए। उसने कहा, यहाँ तो हवा के नाम भी नहीं, बाग में हवा कहाँ से आई।
अमरू ने कहा, खुदा जाने, मगर तुम चलो और देखो कि मैं सच कहता हूँ। मालिक ने आकर देखा तो वाकई 3 दरख्त गिरे पड़े थे। उसने ये देखा तो रोने लगा कि मेरी रोजी ही इन दरख्तों के तुफैल थी, अब तो मैं भूखों मर जाऊंगा। अमीर को उस पर रहम आ गया और अमरू से कहा कि एक दरख्त के बदले उसको खजाने से एक ऊँट दिलवा दो। अमरू गया और खजाने से 3 ऊँट लेकर बागबान को दे दिए। वो बहुत खुश हुआ और जैसे ही चलने लगा तो अमरू ने रोक लिया और कहा, दरख्त तेरे आंधी ने उखाड़े और तूने रोकर 3 ऊँट मुफ्त में हथिया लिए और अब तीनों ऊँटों को लेके मुंह फेर कर जा रहा है, जैसे हमें जानता ही नहीं। मैं चाहूँ तो अमीर से कहकर तीनों ऊँट वापस खजाने में जमा करवा सकता हूँ। मालिक डर गया और एक ऊँट अमरू के हवाले कर दिया। उमर वो ऊँट लेकर वापस घर लौटा। गर्ज ये कि इसी तरह दिन गुजरते गए। बकिया कहानी अगली किस्त में। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कहानी का अगला हिस्सा सुनने और पढ़ने को मिल सके।